Assalamualaikum dear students of class 2. I am your English teacher Ms. Javeria and I am back with an interesting lecture. So today we are going to do some work on preposition. So basically let me tell you first that what is preposition. Preposition is, we just did in the previous lesson about noun. What is noun? Any person, place or thing is a noun. Sometimes we have to tell the position of the noun, that where is the noun actually. If I say the marker is in my hand, कि marker मेरे हाथ में है, तो अभी marker की position, marker की place क्या है? मेरे हाथ में, in my hand. So basically the in is right now the preposition. जो इन है उसको हम कहेंगे preposition, जो कि noun की position को, noun की place को show कर रहा है. That I am standing in the classroom. So in I am noun, right? So मेरी इस time place क्या है, मेरी standing की जगह क्या है, वो इस time है classroom के अंदर, in. I would be standing out of the classroom. So out would be the preposition in case if I would be standing outside the classroom. Okay, the bakery is near my house. तो bakery is a place, basically it's a noun. So उसकी place क्या है, उसकी position क्या है, that is near, करीब है मेरे घर से. So this is also the preposition. I have also write some of the prepositions on the board. You can see that is in, under, the book is under the table, on, out, near. So these are some prepositions. So we are going to do a worksheet on a topic of preposition. So let's do this interesting topic. So this is a worksheet of preposition. Put suitable preposition in the following sentences. Use words in the box. So we are having a box, down, from, in, up, on. We have to write the prepositions, correct prepositions in the following blank. Rahman is coming home dash the market. रहमान जो है वो घर आ रहा है मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट. रहमान इज कमिंग होम फ्रॉम द मार्केट. द टीचर रोट डैश द ब्लैक बोर्ड. सो वी हैव डन फ्रॉम, वी विल मार्क द टिक ऑन इट. द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, पर ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिखा. आयशा रैन क्विकली द हिल. हिल से वो आ रही है डाउन, इट्स कमिंग डाउन. आयशा रैन क्विकली डाउन द हिल. टोनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डैश द हिल, अप द हिल. देयर इज अ माउस इन, मेरे किचन में, इन माई किचन. So these were some of the prepositions we write in the correct blank. Next is underline the prepositions. We have to underline them just like we did in our worksheet of noun. Maria lived near a river. So near is also a preposition के उस वो river के करीब रहती है. In her garden, in is also a preposition, उसके garden में. There was a small boat. One day during the monsoon, Maria took the boat out बाहर निकाली उसने, ऑफ द गार्डन. शी कैरिड इट अलॉन्ग, वो अपने साथ ले गई. द पाथ टू द रिवर. शी पुट द बोट इन द वाटर एंड शी जम्प्ड ऑफ द बैंक इन टू द बोट. कि उसने जंप किया उस बोट में बैठने के लिए, बिकॉज शी टुक इट आउट ऑल द वे फ्रॉम द होम सो दैट शी कैन use that boat. So these were the worksheets and of our preposition. So students, this was the easy topic of preposition, the placement of a noun which is shown by any word, that is known as the preposition. In, out, on, up, at, under, inside, outside, along. These are all the prepositions which show the position of the noun, and you already know what is noun. Let me repeat it. Any person, place or thing is known as a noun. और उसकी प्लेसमेंट को जिन वर्ड्स के साथ हम शो करते हैं उनको preposition कहते हैं. इसके अलावा भी it's your homework apart from the worksheet we just did.
कि आपने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो मेक करने हैं खुद से, एंड यू हैव टू रिलेट इट विद द पोजीशन प्लेसमेंट, ताकि उसमें आप कोई प्रपोजिशन लिखो और फिर उसको अंडरलाइन करो या फिर सर्कल करो, ताकि आपको पता लगे दैट यू हैव also placed it with the correct preposition or not. So now we are going to do the topic of punctuation. Let's move on towards our board. मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो है पंक्चुएशन के जो है वो ड्रॉ किए हैं और साथ ही उनके नेम्स भी राइट किए हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पे और किस तरह यूज़ होता है। कॉमा, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉमा, लाइक दिस। कॉमा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने सेंटेंस के दरमियान में जो है 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है। फुल स्टॉप इज़ यूज्ड वेयर वी कंप्लीट आवर सेंटेंस, और उसके बाद एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि पता लग जाए कि हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है वो तब यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, बताने के लिए कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा था उसके एंड पे, ताकि शो हो सके अगर कोई रीडर है तो उसे पता कैसे लगेगा दैट इट्स अ क्वेश्चन, ऑलरेडी वो गेस कर लेगा इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ रिटन, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ ऐसा होता है जस्ट लाइक अ लाइन एंड डॉट एट द एंड। कोई भी हम अपनी एक्सप्रेशन शो करने के लिए जो है वो ये वर्ड यूज़ करते हैं, उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वाओ, सो एट द एंड ऑफ द वाओ, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इज़ सिमिलर टू द कॉमा, ऐसे ही होता है अपोस्ट्रॉफी, बट कॉमा जो है वो लाइन के साथ जो है वो ऐड किया जाता है, जबकि अपोस्ट्रॉफी जो है वो अबव होता है लाइन से। एंड कोटेशन, कोटेशन आर द 2 कॉमास इनसाइड और आउट। हम तब ये कॉमास यूज़ करते हैं, जैसे कि अपोस्ट्रॉफी मैंने आपको बताया था कि वो लाइन से अबव होता है, इसी तरह कोटेशन भी हम जब यूज़ करते हैं कोई, तो वो उसके कॉमास भी लाइन से अबव होते हैं। सो कोटेशन बेसिकली अगर मैं कोई वर्ड कोट करूँ एज इट इज़, जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउटसाइड, सो मेरी मदर ने जो वर्ड्स बोले वो एज इट इज़ मैंने कोट किए, नॉट टू गो आउटसाइड, सो दीज वर्ड्स वुड बी इन कॉमा, क्योंकि ये किसी की बात है जो कि मैंने एज इट इज़ आगे उसको दूसरे तक पहुँचाइए, कन्वे किए। सो वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट्स ऑफ इट। नाउ लेट्स डू दिस। सो वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट of punctuation, which is put capital letters and full stops and rewrite them. We have to rewrite them into this line given. Mr. Khan worked in an office. So you already know the first letter of any sentence, उसको हम capital लिखते हैं। Name का first word is always capital. So Mr. is the first letter of our sentence, so we will write it with the capital letter. Mr. Khan is a name referred, so K capital, K H A N, Khan worked in an office. So here यहाँ पे sentence end हो गया है, तो we will put the full stop at the end. The office was in Lahore, so the is the first letter of the sentence which will be written as capital. The office was in Lahore will be capital. L is already capital, so we will write H capital because it's the name of a city. One day Mr. Khan went to Multan, so one O must be capital because it's the first letter of a sentence. One day Mr. Khan, Mr's M would be capital and Khan's K would be capital, went to Multan's M will be capital because it's the name of a city, and at the end we will place a full stop. He stayed at the Royal Hotel on Nazimuddin Road. He, H would be capital, stayed at the, so Royal Hotel is the name, so basically R is going to be capital, R-O-Y-A-L, Royal. The H of the hotel would be capital, H-O-T-E-L, on,
So this name of the road would be in the capital Nazim, U would be capital D and DIN and ROAD, road. Next is on Monday he caught a plane back to Lahore. On, O would be capital, Monday is the week name, that's why it's M would be capital. He caught a plane back to, so Lahore is also the name, so L would be capital. So before writing anything, first underline the words on the given sentence ताकि आप उस पर ही उसको करेक्ट कर लो, ताकि आप जब राइट करने लगो तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार इरेज ना करना पड़े. नेक्स्ट इज़ ऐड कॉमाज ऑन द फॉलोइंग. कॉमाज जो है ऐड करने अपने फॉलोइंग सेंटेंसेस में. अच्छा, कॉमाज जो है वो कहाँ ऐड होते हैं? वी विल डू इन द सेंटेंसेस. लेट्स सी. द ओल्ड ग्रे ट्री वॉज डाइंग. नाउ देयर आर two things that is referred with the tree, so we will add the comma between them to divide those two things. The grey old tree, so the tree is old and it's also grey, so to divide that word into two different parts कि tree जो है वो old भी है वो grey भी है, तो इसके center में हम जो है वो comma place करेंगे. They lived in a large modern house. So house जो है वो large भी है और modern भी है. So these are two things that is related to that house. So large is one thing, as modern is two thing. The second thing, so we will place the comma between large and modern. He drove fast red sports car. जो sports car है वो fast है और दूसरी वो red है. So these are the two things. So we place comma between fast and red. The room was dirty, dark and empty. So the room is actually dirty and dark also and empty as well. So we place the comma between dirty and dark so that उसके सेंटर में जो है हम उसका डिफरेंस शो कर सके, that the room is also the dark and also dirty. So next worksheet is put the sentences below, put in the missing apostrophes. So as I told you कि apostrophes is above the line, but where we have to put the apostrophe? It do looks like a comma, but comma is on the line, whereas apostrophe is above the line. So let's do this. This emperor's court was full of musicians. Now the apostrophe is always with S because it shows the relationship of anything with the other thing. अब यहाँ पे apostrophe हम लगाएंगे इधर emperors के साथ, क्योंकि emperors का कोट है जो कि musician से full है. So I will write this emperors OR. Now the S will be written as above, but I will put the apostrophe between R and S, which means emperor's court. के emperor's के कोर्ट में जो थे वो उसकी belonging शो करिए, was full of musicians. Next is there were poets and writers at Akbar's court. So poets शायर थे, writers थे, लिखने वाले थे, तो this is not the belonging. So belonging क्या शो कर रही है कि अकबर के कोर्ट में जो थे वो वहाँ पे थे. तो अकबर का कोर्ट जो है इधर अकबर्स के साथ अपोस्ट्रोफी प्लेस करेंगे, क्योंकि बिलोंगिंग किसके साथ शो हो रही है, किसके साथ कनेक्शन है, किसके कोर्ट में आए हुए हैं पोइट्स और राइटर्स, अकबर के, तो अकबर्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी प्लेस करेंगे. देयर वर पोइट्स एंड राइटर्स एट Akbar. Now I have already write S over here. Now I will place apostrophe between R and S, and apostrophe is always above the line.
सो अकबर्स कोर्ट, कि अकबर के कोर्ट में जो थे वो आए हुए थे. सो दिस इज आई एम ऑलरेडी अगेन टेलिंग यू कि जो बिलोंगिंग होती है, जिसके साथ ताल्लुक़ होता है किसी चीज़ का, रिलेट किया जाता है, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगता है. क्योंकि हमारे पास तो एस पोइट्स के साथ भी लगा था, राइटर्स के साथ भी लगा था, पर उसके साथ बिलोंगिंग शो नहीं हो रही. बिलोंगिंग अकबर के कोर्ट के साथ शो हो रही है कि वहाँ पे राइटर्स और पोइट्स थे. द बॉयज़ मदर डिड नॉट गो टू हर सन्स रूम. सो द बॉयज़ मदर, कि जो लड़के की मदर थी, बॉय की मदर थी. सो आई विल ऑल्सो प्लेस अपोस्ट्रोफी अबव बॉयज़. बॉयज़ मदर, कि जो बॉय की मदर थी, डिड नॉट गो, नहीं गई, गो टू हर सन्स रूम. सन्स अपने बेटे के कमरे में जो थी वो नहीं गई. सो आई हैव प्लेस 2 अपोस्ट्रोफीज, वन ऑन बॉयज़ मदर, कि लड़के की मामा, क्योंकि बिलोंगिंग शो हो रही है कि जो मदर है वो किसकी है, बॉय की, लड़के की, और वो किसके रूम में नहीं गई, रूम किसका है, सन का. सो बिलोंगिंग शो हो रही है, सो सन्स रूम. द बॉयज़ फादर, नाउ जो फादर हैं वो बॉय के हैं, तो बिलोंगिंग जो है वो बॉय के साथ है. दैट्स वाई अपोस्ट्रोफी ऑन एस, बिफोर एस ऑन बॉय. फादर वॉज अकबर्स फ्रेंड, अकबर के फ्रेंड थे. सो बिलोंगिंग है अकबर के फ्रेंड के साथ, तो अकबर्स के साथ जो अपोस्ट्रोफी ऐड किया हमने. सो नाउ द नेक्स्ट इज पुट इन्वर्टेड commas in the following. Inverted commas are similar to commas but just like apostrophe, वो भी लाइन से above होते हैं and they are not, और वो जो है वो सिंगल नहीं होते, उस हमेशा वो 2 होते हैं एक साथ. और हमें जो है वो वी ऑल्सो पुट द कॉमा इफ इट्स रिक्वायर्ड. ही सेड, उसने कहा. सो यहाँ पे एक बात एंड हो गई है, सो वी विल पुट द कॉमा हेयर. अभी सेंटेंस नहीं एंड हुआ, दैट्स वाई वी कांट पुट द फुल स्टॉप. ही सेड कॉमा टुमारो इज संडे. अब उसने ये बात की थी तो ये एज इट इज़ कोट की जाएगी, कोटेशन मार्क्स इधर ऐड करेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज ऐड करेंगे क्योंकि उसने बात की है, लाइक दिस. सो शी सेड, इसके साथ हम कॉमा ऐड करेंगे. देन शी सेड नो इट इज़ मंडे, उसने कहा कि मंडे. सो वी विल प्लेस इन्वर्टेड कॉमास हेयर एंड हेयर, कि नहीं इट इज़ मंडे, कि मंडे है. टुडे इज़ सैटरडे, आज सैटरडे है. सो ये एक बात है, इन्वर्टेड कॉमास इसको एग्जैक्टली ऐसे ही कोट करेंगे एंड देन अ कॉमा, क्योंकि नेक्स्ट बात की है ही सेड, उसने कहा. नो टुडे इज़ संडे, नाउ इट्स द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ समवन, इसको ऐसे ही कोट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास. नो टुडे इज संडे, शी रिप्लाइड कॉमा, शी रिप्लाइड, उसने कहा. सो दिस वाज अवर वर्कशीट. डोंट फॉरगेट एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इन्वर्टेड कॉमास जो हैं किसी और पर्सन की बात एग्जैक्टली जो उसने कही होती है उसको कोट करते हुए लगाते हैं, ताकि उसके उस बात को एम्फेसाइज किया जा सके, उस पर जोर दिया जा सके कि ये बात उसने कही और ऐसे ही किया. सो दैट्स वाई उस केस में हम इन्वर्टेड कॉमास प्लेस करते हैं. और कॉमा तब प्लेस करते हैं जब बात एंड ना हुई हो, पर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 बात जो है वो 2 बातें हुई भी हों, एक का एक पार्ट हो और दूसरे का दूसरा पार्ट हो, उसको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए. सो दिस इज़ आवर वर्कशीट ऑफ पंक्चुएशन. Put full stops and capital letters in the following sentences. हमें full stop where there is necessary और capital letters जो हैं वो place करने हैं. Where there is a belonging, जहाँ पे there is mom's, mother का bag है. Why there is mom's bag. Cried Adil, full stop. She's left it behind. Full stop. He, now new sentence start हो रहा है. He must be capital. He took the bag and ran out of the house. यहाँ पे एक sentence complete हो गया है कि वो उन्होंने उसको पकड़ा है और भागते हुए घर से आ गई हैं. He, now this other sentence जो है वो start हो रहा है. He jumped on to his cycle. Full stop. I shall catch up with mom. Now mom is a name, so M would be capital, M-U-M. In a minute or 2. कह रहे हैं मैं मदर को जो हूँ, मम को जो है 1 या 2 मिनट में जो उनको चेस कर लूँगा, उन तक पहुँच जाऊँगा. सो इट्स अ फुल स्टॉप ओवर हियर. नाउ दिस नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ही कैपिटल. ही थॉट एंड ही साइकिल्ड क्विकली अलॉन्ग द रोड. नाउ फुल स्टॉप एट द एंड, बिकॉज यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो गया है, बात भी एंड हो गई है. नेक्स्ट इज चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स, यूज एन अपोस्ट्रॉफी.
कह रहे हैं अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करके नीचे लिखना है लाइन के ऊपर और अपोस्ट्रोफी में चेंज करना है। अब बिलोंगिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बिलोंगिंग को जो है वो शो करना है। सो हाउ वी गोइंग टू डू इज़ द फेस ऑफ द मंकी। सो बिलोंगिंग क्या है कि वो मंकी का फेस है, तो इट वुड बी मंकीज फेस। मंकी के साथ एस लगा के ऊपर पोस्ट्रोफी, मंकीज फेस। अब शो हो गया कि वो मंकी का फेस है। अगर हम ऐसे रीड करें द फेस ऑफ अ मंकी या मंकीज फेस, बोथ केसेस में सेम चीज़ है। द वर्ड्स ऑफ मिस्टर खान, सो इट वुड बी मिस्टर खान्स। नाउ आई विल प्लेस पोस्ट्रोफी एंड एस, मिस्टर खान्स वर्ड। द गिगल्स ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस गिगल, कि बच्चों की जो थी वो गिगल्स थी। द पजामाज ऑफ शाहमीर, शाहमीर एंड आई विल राइट पोस्ट ऑफ ये शाहमीर्स, तो बिलोंगिंग शो गई पजामाज। सो दिस वॉज हाउ इट वर्क्स। इफ़ वी रीड इट लाइक दिस, द फेस ऑफ द मंकी और मंकीज फेस बोथ आर सेम बिकॉज दोनों ही बिलोंगिंग को शो कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द lesson of the apostrophes work. Moving back towards our board. So students, this was our lesson of the punctuation. It's quite tricky but we can overcome this और इसको हम अच्छी तरह memorize कर सकते हैं इसी तरह कि हम इसको जो है वो बार बार रिवाइज करें और इसके रूल्स को समझें और उसको याद रखने की कोशिश करें। सो दिस लेसन नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई होप you will do it with your teacher or the one who teaches you at home. So don't forget to rewrite it again and again and practice it, and also don't forget to revise all the previous lessons and the units we did of English A and B. So take care of yourself, prepare yourselves for exams, and Allah Hafiz.